Hair transplant is so goddamn painful. It's not the surgery, it's a bloody neck pillow. Hi guys, मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट किया था on 18th and 19th February 2026 at Medling Aesthetics in New Delhi, Safdarjung Enclave. The surgery was performed by Dr. Gaurang Krishna, who is also one of the founders of Medling Aesthetics. He did the hairline design and slit creation, and the graft extraction and distribution was done by Dr. Sunil. ये वीडियो मैं बेसिकली अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बना रहा हूँ, विच विल इंक्लूड माई हिस्ट्री, रिसर्च मेरी क्या थी चूज़ करने के लिए मेडलिंग एस्थेटिक्स, कॉस्ट ऑफ द सर्जरी एक्सपीरियंस कैसा था, पोस्ट सर्जरी कितना केयर रखना पड़ा था, एज वेल एज माई एक्सपेक्टेशंस कि मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ आफ्टर द इवेंट. जब मैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए रिसर्च कर रहा था ना, यूट्यूब पे मुझे कोई पर्सनल यूज़र की कोई रिव्यू नहीं मिली ऑफ मेडलिंग एस्थेटिक्स. मतलब वो अपने खुद के प्रोफाइल से ऑफ कोर्स दे पुट लॉट ऑफ वीडियोस ऑफ द कस्टमर्स ऑफ द क्लाइंट्स, उनके एक्सपीरियंस कैसे थे, बट पर्सनली कोई पर्सन का मेरे को रिव्यू मिला नहीं. और बहुत लोग ना वैसे भी बहुत लोग छुपाते भी कि उन्हें हेयर ट्रांसप्लांट कराया कहते हैं कि क्या मतलब तुमने कराया तो कराया, इतना छुपाने का क्या है, सीना टोक के बोलो कि हाँ भाई मैंने कराया, जो चाहिए जो वो चाहिए और क्या. जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इट्स डे 48 सिंस माई हेयर ट्रांसप्लांट. 18 एंड 19 फरवरी को हुआ था, 2 दिन हुआ था, 6 घंटे, ऑलमोस्ट लाइक 12 PM टू 5-6 PM, दो दिन चला था. तो डे 48 है आज जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. तो मतलब अभी तो मतलब 3 months भी नहीं स्टार्ट हुए, वो अगली डकलिंग फेस अभी तो नॉर्मल स्टार्ट हो रहा है. तो बेसिकली उन्हें सामने किया था यहाँ पे, एंड दे पुट अ फुल स्ट्रिप हियर एंड ऑन द क्राउन बैक बिहाइंड. So I started losing my hair in 2020. Usually I'm a non-vegetarian. मैं इतना अल्कोहल या स्मोकिंग तो बिल्कुल ही नहीं करता. अल्कोहल मे बी once in 2-3 months रेयरली, वो भी मैंने बहुत देर से छोड़ दिया है. पहले करता था मे बी once in 2-3 months because I was never a fan of alcohol. 2020 में I started losing hair. I was around 23-24. And उसमें because at that time ना like I usually go to the gym regularly, strength training and relatively healthy diet, and उसमें उस टाइम क्या था, I had started taking creatine. Now creatine is a relatively safe, well researched sports supplement that a lot of people take. It's not a steroid, and creatine में I had done my research and everything, and at that time also I had seen the research where it said that if you take creatine, if you are pre-genetically disposed to hair loss, so it may fasten the process. It might not directly cause it, but it may fasten the process. Of course there's different research and subjective, you can research yourself to see what the facts are on that, but at least what I had read, maybe I'm right, maybe I'm wrong, creatine increases the hair loss faster, increases the cycle faster if you are prone to genetically, you're prone to hair loss. तो अगर आप मेरी पुरानी फ़ोटो भी देखोगे अराउंड 2020 में, तो लाइक you can see the full set of hair. तो then I started losing my hair in 2020 and almost मतलब सामने के चले गए थे as well as crown के. मेरे यहाँ पे राइट में साइड में एंड पीछे बैक ऑफ द हेड काफ़ी अच्छी ग्रो करते थे, टचवुड. And plus I have curly hair, so it used to help also because curly hair cover up the area more. I was recently told by the doctors जब मैं research कर रहा था, as well as meeting different doctors to choose my clinic, they were saying especially कि curly hair covers more area usually. So if you have curly hair, then you are at a more advantage to have a more fuller look. तो तभी तो that's why in 2020 then I started losing my hair, and after 6 years I decided कि चलो hair transplant try करते हैं, why not, when the opportunity is there then why not exploit it. Usually वही है कि hair transplant में you're not like enhancing anything, you're basically trying to sustain what was there. Basically वो क्या कर रहे हैं, कुछ नए hair तो लगा नहीं रहे, they basically move the hair from here to here, and जहाँ पे भी ज़्यादा grow करते हैं which is not prone to DHT, dihydrotestosterone, which are more relatively safer genetically, that you don't usually lose. और वो आपके parents, grandparents, blood DNA linkage पे भी बहुत depend करते हैं, and also your lifestyle. I would say it's 99% is genetic
genetics, 1% is luck, destiny, whatever you want to call it, कि आपके बाल जाते हैं नहीं, and of course even after hair transplant you can still lose hair, ऐसे कुछ नहीं है. तो like my dad is around 65 right now and उनके काफ़ी hair है साइड में इधर एंड पीछे. ऊपर से he has less hair because भाई वो DHT prone है, तो even he can get a hair transplant done if he wants to. आजकल तो वही beard से भी ले लेते हैं, chest से भी ले लेते हैं, हर जगह से ले लेते हैं. तो वही है कि आजकल वही वो पहले तो डर लगता है ना कि क्या कराना है, because it is a cosmetic surgery at the end of the day, but touchwood relatively is quite safe. जब मैंने फर्स्ट लॉस माई हेयर ना इन 2020, आई वाज लाइक हटा, वो सावन की हटा, मैंने आई फुल्ली शेव्ड ऑफ माई हेयर. आई वाज लाइक क्या डर है, मारो गोली. बट या लाइक अगर आप देखोगे, नॉट एवरीवन इज अ गुड कैंडिडेट फॉर हेयर ट्रांसप्लांट. योर डॉक्टर विल एनालाइज दैट एंड लेट यू नो कि आपका डोनर एरिया है या नहीं. आप बियर्ड से ले सकते हैं, चेस्ट से ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द डॉक्टर सेज. एंड लॉट ऑफ पीपल हेयर ट्रांसप्लांट समटाइम्स नॉट इवन नेसेसरी, डिपेंडिंग ऑन योर एज. हैज़ योर हेयर फॉल रिसेंटली स्टार्टेड या अभी बस शुरू हो रहा है. कोई लोग अर्जेंटली करा देते हैं, विच मे नॉट बी द बेस्ट केस, बिकॉज इट्स जस्ट यू नीड टाइम फॉर इट टू स्टेबलाइज एंड देन आप फिर थोड़ी देर के बाद कराओ. एंड प्लस समटाइम्स हेयर फॉल का रीज़न शायद जेनेटिक्स भी कभी कभी नहीं होता है. इट कैन ऑल्सो बी योर डाइट, योर लाइफ स्टाइल. एंड लोग कभी कभी लाइफ स्टाइल उनके ब्लड रिपोर्ट टेस्ट वेस्ट करा के कभी कभी कमी निकल जाती है, एंड देन इट रिकवर्स eventually. So there are different reasons why people get it done, and who actually needs to get it done, that also matters. मेडलिंग एस्थेटिक्स वही कंपनी है जिसने वीरेंद्र सहवाग, गुलशन ग्रोवर, पार्थिव पटेल, मैथ्यू हेडन, मैरी कॉम एंड अदर सेलिब्रिटीज़ का हेयर ट्रांसप्लांट कराया है. बहुत लोग हेयर ट्रांसप्लांट इसलिए कराते हैं बिकॉज दे फील फियर, इनसिक्योरिटी, या दे लूज कॉन्फिडेंस. एंड इट्स ऑल रिस्पेक्टफुल कि जिसको भी जिस रीज़न से वो करा रहे हैं. बहुत लोग इसलिए कराते हैं बिकॉज दे फील कि उनकी गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी या वाइफ नहीं मिलेगी. ऑफ कोर्स रियलिटी इज सम women will have a problem with people not having a full set of hair, और कोई लड़कियों को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि आपके हेयर कम है या ज़्यादा है. ऑफ कोर्स आपकी पर्सनल चॉइस है. अगर आप कराना चाहते हो तो डेफिनेटली कराना चाहिए. साइंस है अब, तो why not exploit it? And of course some people are just lazy, they don't want to go through the whole process. And आप देखोगे there are some shaved full bald men, full shaved लोग इतना अच्छा लगते हैं. They look so classy and sharp, and you can find so many examples of bald men with the hottest women in the world. Of course वो connect होना चाहिए, it's not about just looks always, but yeah. तो अगर आप सोच रहे हो कराने के लिए then definitely go for it. वो शुरू में वो थोड़ा uncomfortableness होता है, but once you go through it it's all good. सर्जरी बहुत आसान होती है, इतना कोई वो नहीं है. पोस्ट केयर थोड़ा yes I would say is little irritation, but सब हो जाता है. 2025 में मुझे कोई ऐसी रैंडम थॉट आया कि यार क्यों नहीं कराते हैं, चलो करते हैं अब. ऐसी रैंडम थॉट आया, ऐसे भी नहीं किसी ने कोई मेरा मजाक कराया था, समथिंग लाइक दैट, बट जस्ट नेचुरली आई फेल्ट लाइक कि व्हाई नॉट गो एंड डू इट. तो मैंने फिर रिसर्च करना स्टार्ट किया. तो सबसे पहले जब रिसर्च करते तो सबसे ज़्यादा तुम हियर करते हो ना न्यूज़ में कि टर्की चले जाओ, वहाँ पे बेस्ट हो रहा है, करा लो वहाँ पे जाके. बट वही बड़ा इशू होता है, टर्की जाओ, एयरप्लेन टिकट्स, फ्लाइट टिकट्स, होटल टिकट्स एक्सेट्रा, ये सब. इसलिए तुम बाहर जा रहे हो और अगर कुछ पंगा वंगा हो गया सर्जरी में कुछ, तो इंटरनेशनल लॉ सूट, फाइलिंग केस, ये वो सब बड़ा झंझट है और पता नहीं कुछ होता भी है नहीं. तो आई वॉन्टेड टू एक्चुअली डू इट विद इन दिल्ली इटसेल्फ. तो मेरा रिसर्च ये था कि पहले तो मैंने अपने फैमिली फ्रेंड्स में पूछा किसी ने कराया है, किसी को एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप पहले बेसिकली कनेक्शंस के थ्रू ढूंढते हो कि पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है, क्योंकि वेल ट्राइड एंड टेस्टेड. क्योंकि ऑनलाइन तो आपको इतने क्लिनिक्स मिलेंगे, यूट्यूब वीडियोस इतनी मिलेगी, बट आपको मिलना मुश्किल हो जाता है. फिर क्या बोलते हैं कि कौन से क्लिनिक से कराए, बिकॉज इतना क्लिनिक है, इतना इन्फॉर्मेशन है. तो जब कोई किसी का रेफरेंस हो, किसी ने कराया हो, तो हमेशा बेटर रहता है, बिकॉज एटलीस्ट वो ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है कि हाँ भाई इस बंदे ने कराया था, मेरा दोस्त है, तो यहीं से ट्राई कर सकते हैं. तो मेरे पास 2 रेफरेंसेस थे जिनने कराया था डिफरेंट क्लिनिक से. एक मेरे दोस्त ने कराया था फ्रॉम मेडलिंग एस्थेटिक्स 2020 में, और एक ने वही डॉक्टर पंकज त्रिपाठी से कराया था मेडलिंग एस्थेटिक्स के, जो तब वो करते थे.
अब दूसरा डॉक्टर गुराम कृष्णा करते हैं, वो बेसिकली पंकज जी स्किन का केयर देखते हैं मोस्टली। और मेरे एक और दोस्त ने कराया था फ्रॉम डॉक्टर एस कबीर एट गंगाराम हॉस्पिटल। तो मैंने पहले ही तो वो दोनों रेफरेंसेस लिए। अक्टूबर में मैंने अपॉइंटमेंट्स ली डॉक्टर्स की, मैंने दोनों से कंसल्ट किया एंड ऑल्सो आई लुक्ड ऑनलाइन रिसर्च में कि क्या नाम आ रहे हैं, चैट जीपीटी यूज़ किया, मेडलिंग एस्थेटिक्स का काफ़ी जगह नाम आ रहा था, ऐसे रिव्यूज़ देख रहा था। पर भाई प्रॉब्लम क्या है, बहुत लोग शेयर नहीं करते, दे वांट टू हाइड इट। तो इतना रिव्यूज़ थे पर इतने नहीं थे। एंड यूट्यूब पे भी किसी की वीडियो देखी नहीं फ्रॉम मेडलिंग एस्थेटिक्स जो उसका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस हो, विच इज़ नॉट बी अपलोडेड बाय द क्लिनिक इटसेल्फ। तो पर्सन यूज़र प्रोफाइल का नहीं था, अपने आप किसी ने बनाया नहीं था। तो जब मैं अक्टूबर में गया तो मैंने वो देखा कि अपॉइंटमेंट्स ये लिया, तो वही दोनों ने वही कहा कि आपके कर्ली हेयर है विच इज़ वेरी गुड फॉर हेयर ट्रांसप्लांट, टचवुड, कि वो ज़्यादा फिलिंग होता है। तो अक्टूबर में मैंने सोचा अपॉइंटमेंट्स ली, फिर मैंने यूट्यूब वीडियोज़ देखी। जब मैंने YouTube वीडियोस देखी तो मैं तो पहले डर ही गया कि भाई कौन कराएगा, इतना खून खून खून, बंदा ही पागल हो जाए, इतने पूरा यहाँ पे खून, इधर खून उधर खून, फिर उसके बाद टेक केयर करो, ये करो वो करो। तो मैं तो पागल ही हो गया था, ये छोड़ो भाई, मारो गोली। बट फिर मैंने अक्टूबर में ये सब देखा, कंसल्टेशन किया। फिर मैं आई थिंक फरवरी में मैं सीरियस हुआ उसको करने के लिए, चलो ठीक है करते हैं। मैंने काफ़ी रिसर्च की कि क्या प्रोसीजर है, कैसा होता है, पोस्ट केयर कैसे करना होता है। काफ़ी यूट्यूब वीडियोस है ऑन मतलब फॉरेन में, यूएस में, नॉर्थ अमेरिका में, कि कैसा प्रोसीजर था। ऐसे जैसे आप रिसर्च करते हो तो मैं हर चीज़ नोट डाउन कर रहा था कि पोस्ट प्रोसीजर क्या करना होता है, बिकॉज हेयर ट्रांसप्लांट आई वुड से पोस्ट प्रोसीजर इज़ इवन मोर डिफिकल्ट। और आजकल के ज़माने में ना it's good to do your own research before going to any hospital or clinic. Of course you take your doctors का लो, of course सुनो, but जो भी वो prescribe भी करना है, you should do your own research also now, क्योंकि सारा information online है। And of course I'm not saying you be bigger than the doctor or anything, nothing like that, but of course कि आज के ज़माने में कोई हॉस्पिटल्स क्या करते कि वो बस पैसे बनाने के चक्कर में कुछ भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। You have to do your own research also for your own safety। वो लो, ऑफ कोर्स द मेन काम जो है वही डॉक्टर करिए, बट जैसे वो मेडिकेशन जो आपको रेकमेंड कर रहे हैं कुछ भी, तो आप एक बार ही बस 1-2 सेकेंड सर्च लगते कि क्या मेडिकेशन है एंड ठीक है लेना है या नहीं, वट एवर, और यू वांट अ डिफरेंट मेडिकेशन। तो 2 सेकेंड है, तो इट्स ऑलवेज गुड टू डू योर रिसर्च बिफोर गोइंग। बिकॉज जब मैं गया था ना हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, 95% what they told me I already knew because I had done my research. I had made a list of 20-30 questions to ask Mr. Guram Krishna and he was very good, touchwood। जब मैं अपॉइंटमेंट के लिए गया था तो वो प्रोसीजर के बीच में वो सर्जरीज करते हैं पूरा दिन, उनके 5 से 7 सर्जरीज होते हैं दिन में, एंड डिपेंडिंग ऑन हाउ द ट्रैफिक इज। एंड वो अपॉइंटमेंट ली थी पहले से, एंड ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। मैं अपने पेरेंट्स के साथ ही गया था एंड ही वॉज वेरी काम, ही वॉज वेरी नॉर्मल एंड हेल्पफुली, अच्छी तरह उन्हें आंसर किया सब कुछ। कोई डॉक्टर्स होता है कि भाई चलो चलो हमें अपना जॉब पता है, हमें मत बताओ, पूछो मत क्वेश्चंस। और कोई डॉक्टर्स वही होता है कि दे डोंट they've learned their stuff and everything and they've been doing surgeries and all stuff, but बहुत important होता है to update yourself with the new medication, new research। बहुत लोग वो old school style भी करते हैं which is okay, ठीक है, but it's always good to update yourself। तो डॉक्टर गुराम कृष्ण was quite helpful। तो मैंने काफ़ी क्वेश्चन पूछे, 20-30 क्वेश्चंस जो मेरे थे, डाउट्स सब कुछ, एंड टच वुड इट वेंट वेल। या तो मेरा क्या था, इवन बिफोर द हेयर ट्रांसप्लांट राइट, यू हैव टू हैव अ गुड स्कैल्प इन अ वे, इट हेल्प्स एक्चुअली। तो मेरा एक्चुअली नेचुरली ड्यू टू जेनेटिक्स आई गेट डैंड्रफ। मैं कुछ भी करूँ, माई डाइट इज़ गुड, टचवुड, या शैम्पू रेगुलरली करता हूँ 1 in 2 days, बट स्टिल क्या बोलते हैं, मेरा वो नेचुरली छोटे वो पापड़ी नहीं होता, वो वाइट छोटा सा डैंड्रफ, वो तभी भी आता है बिकॉज इट्स जस्ट जेनेटिक्स, ड्राई स्कैल्प। तो वन ऑफ माई फैमिली फ्रेंड्स, ही इज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट, so he had recommended me anti-dandruff shampoo जो Cycloprax 1% zinc clear scalp shampoo, basically 200 ml वाला। I was applying that before the hair transplant, coming towards the hair transplant maybe once in a week or twice in a week, even though it's recommended every day, but it makes your
हेयर क्वाइट ड्राई, तो बेसिकली वो डैंड्रफ को कंट्रोल करने में मैं यूज़ कर रहा था शुरू में हायर टाइम फ्रीक्वेंसी ऑफ यूसेज एंड देन एवेंचुअली यू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी। तो इवन बिफोर द हेयर ट्रांसप्लांट आपको ट्राई करना चाहिए जितना आप क्लीन रख सकते हो अपने स्कैल्प को। इट्स बेटर कीप योर डाइट हेल्दी, especially within the last 2-3 weeks before the transplant. It's always better. वन ऑफ द बिग क्वेश्चंस जो मैंने 20 क्वेश्चन पूछे थे डॉक्टर गुरांग कृष्णा से, वो ये भी था विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। एक ना वो डिग्रीज होते हैं, प्लास्टिक सर्जन डिग्री DNB MCH, आई डोंट करेक्ट, सॉरी इफ आई एम टेकिंग द नेम रॉन्ग, बट वही मेरा क्वेश्चन था कि डज योर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हैव टू बी अ प्लास्टिक सर्जन बाय डिग्री और लाइक दे कैन बी अ डर्मेटोलॉजिस्ट विद सर्जरी एक्सपीरियंस, कि ज़रूरी है कि वो प्लास्टिक सर्जन होना ज़रूरी है। तो even I looked online and researched, so it's not, he also answered very well, Dr. Gurang Krishna, कि it's not actually mandatory because plastic surgeon is a huge category, it's like an umbrella, उसमें बहुत चीज़ें आप कवर करते हो प्लास्टिक सर्जन की फुल डिग्री में, हेयर ट्रांसप्लांट, बर्न मार्क्स, वूंड्स, ये वो जो डिफरेंट फील्ड्स होते हैं उसके अंडर प्लास्टिक सर्जरी इज अ होल अम्ब्रेला, उसके अंदर डिफरेंट वो है। तो डॉक्टर गुरांग कृष्णा और मेडलिन एस्थेटिक वो तो रेगुलरली कर रहे थे surgeries and all, तो eventually finally between them both are great doctors, Dr. S.S. Gambhir of Gangaram Hospital and Dr. Gurang Krishna, but I personally gut instinct की वजह से chose them because chose Medling Aesthetics for my hair transplant surgery। एक चीज़ मैं बोलूँगा वही मेडलिंग एस्थेटिक्स में वही दिल्ली में डिपेंड्स ऑन द सिटी ऑल्सो फुल 5-star एक्सपीरियंस था, फुल एक्सपीरियंस, ऑफ कोर्स यू पे ऑल्सो अकॉर्डिंग टू दैट, बट इट वाज गुड, ग्रेट एक्सपीरियंस, वेरी गुड टेक केयर, सब कुछ फुल 5-star एक्सपीरियंस। उनका नया क्लिनिक भी बना है, दे शिफ्टेड टू अ न्यू बिल्डिंग इन सफदरजंग के लिए, नया एड्रेस भी अपडेट किया उन्होंने, तो फुल 5-star एक्सपीरियंस था, खाना पीना, कॉफ़ी ये वो रखना, ये सब कुछ, तो इट फेल्ट गुड। कभी कभी होता है कोई हॉस्पिटल्स में लाइंस बहुत होती है, वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है, सो इट वाज रन जैसे ऑपरेशंस करते, इट वाज वेरी गुड। तो प्राइस ऑफ योर हेयर ट्रांसप्लांट इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ वेरियस फैक्टर्स। तो डिपेंड करता है आप कौन सी सिटी में करा रहे हो, कौन से क्लिनिक से करा रहे हो, आपका डॉक्टर कितना एक्सपीरियंस्ड है, क्या बैकग्राउंड रिजल्ट्स है, पास एक्सपीरियंस रिजल्ट्स, सेलिब्रिटी डॉक्टर है या नहीं, डिपेंडिंग उनका बिजनेस कैसे चल रहा है, ऑल्सो हाउ मेनी ग्राफ्स यू नीड ऑन योर हेड, कितने ग्राफ्स चाहिए आपको कितनी देर, कितने नंबर ऑफ डेज यू रिक्वायर, लॉट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। तो यूजली डिफरेंट क्लिनिक से डिफरेंट रेट्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द वेरिएबल फैक्टर्स आई मेंशन। तो कुछ भी आपका हो सकता है, एटलीस्ट बेस्ड ऑन माई रिसर्च आई सॉ दैट यूजली आपका 2 to 12 लाख का लग सकता है पैसे। तो अगर आप वो कर लो, इवन बिफोर द सर्जरी 1 week पहले वो ब्लड टेस्ट करने को बोलते हैं, दे गिव यू अ लिस्ट ऑफ ब्लड टेस्ट, वो आप करा सकते हो, एंड बेसिकली उसमें वही चेक करते हैं सब कुछ कि सारे लेवल्स आपके ठीक है या नहीं, वेदर यू एबल टू गो थ्रू द प्रोसीजर और नॉट। तो वो हमने फुल ब्लड टेस्ट कराया था एंड वी वेंट टू वी गिव देम द रिजल्ट, सो टचवुड एवरीथिंग वाज अ गो, एवरीथिंग वाज गुड। और इवन बिफोर द सर्जरी राइट, मैं अपना रिसर्च कर रहा था, लाइक आई गो टू द जिम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तो मैंने 2-3 दिन पहले या ऑलमोस्ट 4-5 days बिफोर द सर्जरी मैंने जिम बंद कर दिया था, एज वेल एज आई स्टॉप्ड हैविंग कॉफ़ी। वो अलग बात है कि वो तो बोल रहे हैं, डॉक्टर्स बोल रहे थे इवन ऑन द डे ऑफ सर्जरी, ठीक है कुछ नहीं होता, पी सकते हो आप कॉफ़ी, कोई इशू नहीं है ऐसे। और मैं वही रिसर्च देख रहा था, लाइक और डिफरेंट डॉक्टर्स, डिफरेंट हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स रेकमेंड डिफरेंट स्टाफ, बट मैं रिसर्च देख रहा था, इट्स ऑलवेज बेटर लिटिल बिट टू अवॉइड कॉफ़ी एंड जिम 3-4 days हो, बिकॉज इट रेजेज योर ब्लड प्रेशर, और सर्जरी के वक्त आपकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। आई एम नॉट श्योर दिस इज 100% करेक्ट और एटलीस्ट व्हाट आई रेड ऑनलाइन, बट या। तो सर्जरी एक्सपीरियंस वाज क्वाइट गुड, टचवुड। एक दिन पहले ऑफ कोर्स थोड़ी टेंशन होती है
कि क्या होएगा, कैसे जाएगा, कुछ हो ना जाए। डर तो लगता ही है, थोड़ी नर्वसनेस तो होती है। इवन तो इतनी यूट्यूब वीडियोस देखी थी मैंने, रिसर्च देखा था, और इतना नॉर्मल हो गया आजकल हेयर ट्रांसप्लांट, बट वो डर तो लगता ही है। लाइक हमने गुराम कृष्णा डॉक्टर से भी पूछा था कि सेफ़ है। मेरी मॉम ने भी पूछा था काफ़ी बारी, तो होते आप चिंता मत करो, बिल्कुल सेफ़ है, टच वुड। एंड डिपेंड नहीं आप कौन से हॉस्पिटल क्लिनिक से करा रहे हो, लाइसेंस प्रॉपर एवरीथिंग। तो एक दिन पर काफ़ी लाइक मैं नर्वस था। फिर नेक्स्ट दिन मुझे 10 o'clock सुबह रिपोर्ट करना था क्लिनिक में, सफदरजंग एनक्लेव मेडलिंग एस्थेटिक्स के। तो सुबह मैंने नॉर्मल ब्रेकफास्ट खाया, अच्छा मील खा के जाना था। एंड वो कोल्ड कॉफ़ी पी ली थी उस दिन, बिकॉज उन्होंने बोला था पी लो। तो फिर हम गए, 10 बजे पहुँचे। तो सबसे पहले उन्होंने वो किया, BP लिया, ब्लड प्रेशर, और एंड वी डिडंट नो एट दैट टाइम उस दिन बिफोर द हेयर ट्रांसफर प्रोसीजर स्टार्टेड, दे डिड वन PRP, ब्लड लेते हैं वही, वो PRP वही उसको बोलते हैं कि यहाँ से हाथों से ब्लड लेके तुम्हारे यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं। PRP आजकल बहुत कॉमन भी है, वही जो लोग बहुत लोग कराते हैं इधर से ब्लड लेके, दे कीप इंजेक्टिंग। तो दे डिड PRP, और हमें ना टैबलेट खिलाई, 1 एंटीबैक्टीरियल टैबलेट बिफोर द प्रोसीजर, एंड 1 एंग्जाइटी पिल। इवन तो एंग्जाइटी को छोड़ नहीं रही थी, मतलब तभी भी सेफ्टी के लिए खिला देते। तो वो खिलाया, एंड बस फिर बैठे, चाय वाय पिलाई, कॉफ़ी पिलाई वेटिंग रूम में। फिर बाय हाफ एन आवर 45 मिनट्स वी वेंट इनटू द OT। तो OT काफ़ी अच्छा था, एवरीथिंग वहाँ पे लाइक 5-7 रूम्स थे मेडलिंग एस्थेटिक्स में। उनका आई थिंक ग्राउंड फ्लोर पे होता है या फर्स्ट फ्लोर, आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ, बट काफ़ी अच्छा था। और वही है कि मेन जो काम है वो डॉक्टर्स कर रहे हैं आपका, हेयर लाइन डिज़ाइन एंड स्लिट क्रिएशन, डॉक्टर गुराम कृष्णा एंड डॉक्टर सुनील, ग्राफ्ट डिस्प्लेसमेंट, ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन। बाकी जो बेसिक जो वो काम है वो टेक्नीशियंस ही करते हैं, विच आर वेल क्वालिफाइड टेक्नीशियन, डिपेंडिंग आप कौन से क्लिनिक से करा रहे हो, उनको कितना अच्छी तरह सिखाते हैं एंड ट्रेन करते हैं। बिकॉज क्या है, पहले हम ना वो पूछ रहे थे डॉक्टर गुराम कृष्णा से कि आप ही सब कुछ करते हो, बट वही है कि इट्स ट्रू, लाइक जो मेन जो साइंटिफिक आर्टिस्ट्री का काम है, साइंस प्लस आर्ट, वो मेन डॉक्टर्स करते हैं। बाकी जो बाल को इधर से उधर लगाने का वो टेक्नीशियंस ही करते हैं। तो ऐसी कुछ घबराने का नहीं होता, अगर क्लिनिक अच्छा है, इट्स वेल मेंटेन, वेल ट्रेन्ड एवरीथिंग, तो इट टर्न्स आउट गुड। तो मैं गया उधर, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, अंदर ले गए OT में। तो फिर पहले स्टार्ट हुआ एनेस्थीसिया का। तो मुझे पता था एनेस्थीसिया में दर्द होती है, बिकॉज क्या बोलते हैं बाकी चीज़ों में तो सब नंब हो जाता है। तो ऑफकोर्स पहले शेव, पूरा हेड भी शेव ऑफ कर दिया था मेरा, अगर आप देखोगे फोटो में भी फुल हेड शेव ऑफ कर दिया था। वो रोप पहना देते हैं आपको, तो वो फुल कर दिया था। तो फिर जब हम OT में भी गए, दे स्टार्टेड पुटिंग एनेस्थीसिया बैक ऑफ द हेड दिया, एंड फ्रंट ऑफ द हेड एज वेल एज आईब्रोज पे देते हैं। तो ना क्या हुआ, ऑफकोर्स एनेस्थीसिया आप दे रहे हो लोकल एनेस्थीसिया, बिकॉज तुम होश रहता है, बट ये पूरा सुन हो जाता है पीछे और आगे। तो पहले मैंने कहा ठीक है चलो इंजेक्शन का लगेगा, दर्द थोड़ा सा पिंच होता है, बट फिर ना वो साथ में वो वाइब्रेटर यूज़ कर रहे थे। तो पहले मुझे लगा ये वाइब्रेटर, अच्छा कुछ नई टेक्नोलॉजी होगी, क्या होती है वाइब्रेटर कैसे यूज़ कर रहे हैं, लाइक वाइब्रेटर से एनेस्थीसिया आ रहा है, वाह। उस टाइम उन्होंने बताया नहीं था, मतलब मैंने वीडियोस देखी थी, पर उस टाइम मैंने कनेक्ट नहीं किया, रियलाइज़ नहीं किया। तो उन्होंने क्या किया, यूजुअली अब क्या स्टाइल आ गया अच्छे अच्छे क्लिनिक्स में, दे पुट द इंजेक्शन बिहाइंड, पीछे एज वेल एज आगे और आईब्रोज पे भी। बट जब इंजेक्शन डाल रहे हैं वो एक मशीन से जो स्वर्ल होती है, वाइब्रेट हो रही है, वो साथ में कर रहे हैं आपकी इधर जैसे वो डाल रहे हैं वाइब्रेटर, और इधर इंजेक्शन डाल रहे हैं आईब्रो में। तो ऐसे लग रहा है कि जो इंजेक्शन जो एनेस्थीसिया डाल रहे हैं वो वाइब्रेटर डाल रहा है रादर देन इंजेक्शन। बेसिकली दे डू दैट कि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए यहाँ पे रादर देन इधर। वो पिंच तो तभी भी फील होता ही है, बट या तो मेन दर्द उसी में हुआ, इंजेक्शन में क्या बोलते हैं पीछे और आगे और इधर आईब्रोज में थोड़ा होता है, बट ठीक है, इतना सह सकते कुछ नहीं होता। तो बस फिर वो लेटा देते हैं, पूरा हेड नीचे करके ऊपर वो ढक देते हैं, बिकॉज लाइट्स होती है ना इतनी सारी, और ऊपर वो एक वाइट बैंडेज डाल देते हैं, और ये ऐसे तो करने लगे। तो टेक्नीशियंस इतने अच्छे थे, टच वुड, लव देम, काफ़ी थे, अजय, अश्वनी, और काफ़ी लोग देखोगे वो वीडियोज़ में भी काफ़ी उनके दिखते हैं। दे आर वेरी गुड, वेरी ब्रिलियंट, वेरी हेल्पफुल। मैं एक और
पर्सन का नाम भूल रहा हूँ, बट ही वॉज वेरी नाइस। तो वो किया तो पूरा टाइम नीचे बैठे रहो। तो टचवुड मेरे बैठने की बहुत पेशेंस है मेरे में, टचवुड। तो मैं तो चाहता था कि भाई ख़त्म करो जितना जल्दी हो सकता है। ऑफकोर्स अपना टाइम लो जो इतना लेना है, बट मैं तो लाइक फालतू में क्यों टाइम वेस्ट करूँ। तो मैं यूजली बस वॉशरूम ब्रेक ले जाता था, मे बी 1 in 40-45 minutes, बिकॉज ठंड भी होती है ना, AC चल रहा होता है। तो लाइक बिकॉज आई डोंट वांट टू हैव लंच और एनीथिंग, क्योंकि वो अलाउ करते तुम ब्रेक्स ले लो, टाइम ब्रेक्स ले लो, लंच ब्रेक ले लो, नॉर्मल बीच में वो गैप लो, थोड़ा थक गए हो बैठे बैठे। मैं कुछ नहीं लेना चाहता, तभी मैं एक हैवी मील खा के आया था सुबह कि आप ख़त्म करो 5-6 घंटे में। तो बस फिर नीचे मैं ऐसे करके बैठ रहा था, तो मेरे को दिखता था इतना खून निकल रहा था, इतना खून निकल रहा था भाई साहब। मतलब दर्द नहीं हो रही थी, बट फुल 2 बकेट्स ऑफ कॉटन भर के मेरा खून, इतना खून कभी जिंदगी में निकला था। बट वॉज टचवुड बहुत ही, एटलीस्ट आई कैन से टिल नाउ। मतलब जो करना है वो लाइक मैं सच बताऊँ, मेरी जो एक्सपेक्टेशन है ना, दे आर वेरी बेसिक। लोग सोचते हैं वो हेयर ट्रांसप्लांट करोगे तो वो क्रेजी बाल आ जाएगी, लाइक यू नो जब यंग एज के 20 साल के। नहीं, नॉर्मल आपके ऑप्टस हो ना, जो आपके जो हेयर लाइन भी हो इतना नीचे भी नहीं करना चाहते, बिकॉज लुक्स वियर्ड। जैसे आप ओल्ड होते हो, एज यू एज ऑफ मेच्योर, इट गोज हियर एंड विच लुक्स डिसेंट। अगर आप इधर ले आओगे तो और थोड़ा डेंजरस भी होता है साइंटिफिकली फॉर फ्यूचर। क्या बोलते हैं कि अगर बाद में फिर से ज़रूरत पड़े या क्या, टचवुड। तो वही वो कर रहे थे। एंड बस फिर इधर नीचे लेटे मैं रहा एंड लाइक इतने वो थे, इतना खून। बट टेक्नीशियन वेरी नाइस। थोड़ा बीच में ना दर्द होता था मुझे, तो मैं बोलता था थोड़ा एनेस्थीसिया डाल दो आफ्टर अ फ्यू आवर्स, बिकॉज वही होता है कि लाइक वो एनेस्थीसिया स्टार्ट्स वेयरिंग ऑफ। एंड मैं उनको ही बोलता था, तो देयर इज ऑल्सो लिमिट टू हाउ मच एनेस्थीसिया यू कैन गिव, बिकॉज वही वो थोड़ा डेंजरस हो जाता है। तो दे न्यू। तो बस करीब 11-11:30 स्टार्ट हुआ एंड 5-6 बजे तक ख़त्म हुआ। फिर उसके बाद वो वेटिंग रूम में लाते हैं, तो फिर उसके बाद बस पट्टी वट्टी की, उन्हें अच्छी तरह क्लीन वीन किया, क्योंकि बेसिकली डोनर एरिया से इधर डाल रहे थे। तो फर्स्ट डे पे सिर्फ यहाँ पे किया, आगे का इधर फर्स्ट पूरा ब्लड। अगर आप वीडियो में देखिए आपको दिखेगा। तो फर्स्ट दिन का यहाँ से निकाल के यहाँ डाले और फिर बस हम वेटिंग रूम में आए। फिर क्या बोलते हैं, उसने वही पट्टी वट्टी की, अच्छी तरह क्लीन वीन किया, फुल पट्टी कर दी। और बस वेटिंग रूम में गए और फिर वही वो दवाई खाई, कुछ बिस्किट खाया ये वो। तो वही बोल रहे थे कि जब आप जाओगे आपके ना कोई अटेंडेंट होना चाहिए, टचवुड। अगर नहीं है तो तभी आप कर सकते हो अकेले, बट बेटर है कुछ फैमिली या फ्रेंड कोई हो, इससे ज़्यादा सेफर रहता है। तो वही बोलते कि ध्यान से जाना, गाड़ी के अंदर अच्छी तरह, कार के अंदर ठीक तरह घुसना, क्योंकि कभी कभी ना वो एनेस्थीसिया वेयर ऑफ हो रहा होता है एंड लोग यूजुअली अपना ना सर मार देते हैं उसके अंदर, लाइक दरवाजे के ऊपर जो होता है कार का। तो वो अगर वो शुरू में 48-72 आवर्स बहुत डेंजरस होते हैं, बिकॉज आपका फॉलिकल नीचे गिर सकता है अगर कुछ ट्रॉमा लगे या कुछ लगे। तो बहुत लोग का जब वो क्लिनिक से निकलती है उनका लग जाता है, फिर वो ब्लड आने लग जाता है। अगर ब्लड आने लग गया मोस्ट ऑफ द टाइम द ग्राफ्स हैव बीन ड्रॉप, निकल जाते हैं। तो 15-20 मिनट्स में आपको फिक्स करना होता है क्लिनिक में वापस जाके, अगर इवन इफ इट्स पॉसिबल ना, तो यू लूज दोज ग्राफ्स। बहुत लोग के ग्राफ्स लूज हो जाते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन द डोनर एरिया वो होपफुली फिक्स कर देते होंगे। बाकी और डोनर एरिया लेके अगर वो कहीं और गिर गए तो आई डोंट नो, वो डॉक्टर ही आंसर कर पाएंगे उस चीज़ का। बस फिर उन्हें ना सेलाइन स्प्रे दिया, स्टेराइल सेलाइन स्प्रे। तो वो घर जाके एवरी हाफ एन आवर मारना है आपको, सिर्फ जहाँ पे ट्रांसप्लांटेड एरिया है, जहाँ पे रेड है वहीं पे आपको मारना है, नॉट ऑन द डोनर एरिया, बिकॉज डोनर एरिया वैसी पट्टी की हुई है सारा। तो वो आपको करना है। तो वो डोनर एरिया पे जब हम घर पहुँचे तो हम सेलाइन स्प्रे मारने लगे। और यूजली मैं तो टू द टी वेरी डिसिप्लिन, जो उन्होंने बोला आज तक मैंने रिसर्च मैंने टू द टी फॉलो किया। बिकॉज बहुत लोग क्या करते हैं 1-1 घंटा 1.5, 2-3 घंटे नहीं मारते, तो बाद में अगर आप देखोगे एटलीस्ट जैसे माई एस्टिमेशन के बहुत ज़्यादा वो क्रिस्प्स वो हो जाते हैं, जो व्हाट यू कॉल दैट,
वो पपड़ियाँ बन जाती है, स्कैब्स बहुत ज़्यादा आ जाता है उस पर ब्लैक, तो इतना अच्छा भी नहीं होता इन अ वे। तो वही है, अच्छी तरह फॉलो करो आपके जो क्लिनिक जो गाइडेंस देते हैं। एवरी 30 मिनट्स में स्प्रे मार रहा था। तो बस गाड़ी में बैठे और घर चले गए एंड बस फिर खाना खाया एंड मैंने फिर से एंटीबैक्टीरियल पिल ली। दो तो हमारे जो मेडिसिन थे वो ये थे, एक एंटीबैक्टीरियल पिल थी, एक पेन किलर, एक एंटासिड, एक एंग्जाइटी की, और एक अगर वो खुजली हो बेसिकली लाइक इरिटेशन टच करने के लिए, टच आप बिल्कुल नहीं कर सकते तो वो थी। तो अगर आप मेडिसिन देखोगे, मेरे पास मेडिसिन की लिस्ट भी है जो उन्हें रेकमेंड की थी और मैंने चेक भी किया था। वो वही थी, जब वो करते हैं ना लाइक तुम्हारे ऊपर ट्रांसप्लांट, तो ऐसा लगता है कि कोई घास की खुदाई कर रहा है तुम्हारे सर के ऊपर, लाइक फुल वो पंचिंग ये सब तुम फील होता है, बट ऑफकोर्स दर्द नहीं होती। बट वही है कि और फिर जब घर आते हो 1-2 दिन बाद और वट, जब वो थोड़ा स्वेलिंग जाता है, ऐसे लगता है किसी ने हथौड़ा मार दिया सर के ऊपर, तो इट्स क्रेजी तो मतलब वही है कि जब मैं घर आया तो नीचे नहीं करना, सर पूरा नॉर्मल स्ट्रेट रखो, जब आप बैठे भी हो थोड़ा ऊपर करके रखो एंड मेक श्योर कि कोई टच ना हो, घर में किसी का मतलब घुस ना जाए अंदर व्हाटएवर, कि फॉलिकल्स रहते तो फर्स्ट 24, 48, 72 आवर्स वो वेरी डेंजरस। तो उसको आपको एवरी 30 मिनट सलाइन स्प्रे मार रहा था। तो मैं घर पहुंचा, नहा तो सकते हो नहीं, कुछ नहीं, और शर्ट पहन के जाना होता है, और शर्ट ही नहीं पहनो, टी शर्ट तो कर ही नहीं सकते फर्स्ट 10 days आफ्टर द सर्जरी एंड प्रोसीजर मैं शर्ट ही पहन रहा था। तो बस फिर घर पहुंचा, मैंने डिनर खाया, सलाइन स्प्रे मार रहा था एवरी 30 मिनट्स एंड बस फिर क्या बोलते हैं एंटीबैक्टीरियल टैबलेट खाई एंड फिर बस सोने से पहले एक पेन किलर खा ली। द बिगेस्ट ट्रबल मेरे को था वॉज द नेक पिलो, इतना इरिटेटिंग द नेक पिलो, माई गॉड। वही होता है ना, ऐसे तुम फ्लाइट लेते हो लंबी वाली और फिर ऐसे मर के सोना होता है ऐसे फ्लाइट पे, जब तुम बिजनेस क्लास में नहीं होते, प्रीमियम इकोनॉमी होता हो, ऐसे सोना पड़ता है। दैट वॉज माई हालत फॉर 5 days। दैट वॉज द मोस्ट इरिटेटिंग पार्ट, द ब्लडी नेक पिलो। मतलब मेरा नेक पिलो का मन कर रहा था जला दो नेक पिलो को आफ्टर दैट। तो मेरा क्या था, वही मैं फर्स्ट 4 days तो तभी भी ठीक था, नेक पिलो में मैं ऐसे करके सोता था। तो ये थोड़ा ना आपको एलिवेटेड रखना होता है आपका सर पीछे, क्योंकि थोड़ा ना अगर तुम पूरा नीचे कर सीधा सोओगे तो फिर लाइक तुम्हें वो स्वेलिंग थोड़ा फेस पे आ सकता है, विच इज़ फाइन, विच इज़ नॉट एन इशू। बट द थिंग इज कि क्या बोलते हैं वो जितना कम हो तो बेटर है। तो मैं 2 पिलोज नीचे रख के सो रहा था एंड नेक पिलो लगा के रखा हुआ था, और सारा जो टच होता है वो आपके क्या बोलते हैं डोनर एरिया पे होता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं टच होना चाहिए, यहाँ पे और यहाँ पे क्राउन पे। तो मैं ऐसे लेके सो रहा था, तो मेरी मॉम मेरे साथ में थी कि टच अच्छा होना चाहिए रूम में साथ में जो सो रहा, और हमने वही बाथरूम की लाइट ऑन छोड़ दी थी कि रात को थोड़ा होश होना चाहिए कि भाई थोड़ा हिलो मत, तुम लेफ्ट राइट नहीं हिल सकते, ऐसे नहीं करके सो सकते, तुम्हें स्ट्रेट ही सोना है, थोड़ा पीछे करके बस। तो मेन चीज़ क्या थी, इट वॉज द ब्लडी डोनर एरिया पे सोना, बिकॉज जब आप डोनर एरिया पे सोते हो तो वो बिकॉज न्यू किया है ना, घाव है, मतलब लिटरली स्किन निकला है थोड़ा, मतलब ब्लड और उन्हें पट्टियाँ की हुई है, तो सारा प्रेशर इस पे जाता है, तो वो इतना बर्न होता है। बट टच वुड भाई वो पेन किलर हेल्प्स। तो पेन किलर भी आप लाइक 5-6 घंटे ही सो पाते हो रात को, मेरा एक्सपीरियंस ये था। 5-6 घंटे सोया, वही 5-6 बजे मैं उठ गया था, और वही मैं थोड़ा उठते और इरिटेशन होती है, और फिर मैं फिर थोड़ी देर सीधा बैठ गया था, सीधा बैठ के सो रहा था, और मेक श्योर नेक पिलो पीछे है। और वो वही बोलते हैं कि अगर आपका बेड है और बोर्ड इस साइड है तो आप उस साइड सो उल्टा, कि वो आपका सर पीछे गलती से ना लगे। तो मैं वो सो रहा था वैसे, तो ठीक है, फर्स्ट नाइट हो गई थी ओके। फिर बस अगले दिन फिर से गए वो सेकेंड डे प्रोसीजर। तो बस सेकेंड डे प्रोसीजर हो गया, फिर उन्होंने इधर का किया एंड इधर का किया, एंड बस फिर वो उन्होंने फुल कंसल्टेशन दी कि अब आपको 4 दिन के बाद आना है वापस हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में। तो मेरा हुआ था थर्सडे को, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे को मेरा फर्स्ट हेड वॉश था
आफ्टर 4 days। तो हम तो 15 मिनट दूर ही रहते थे जहाँ पे क्लिनिक है, तो हमने उनको बोल दिया था कि भाई हम तो हर दिन आएंगे आफ्टर, जब जिस दिन से हेड वॉश मेरा स्टार्ट हो रहा है हमें घर पे चांस ही नहीं करना। इवन दो आसान होता है कि मैं रिसर्च कर चुका था, बट हम उधर ही कराना चाहते थे और उनके टेक्नीशियन इतने हेल्पफुल थे। शाउट आउट टू अजय अश्विनी जी जिन्हें वो मेरा हेड वॉश किया था, बहुत अच्छा था, इज़ वेरी गुड। तो फिर फ्राइडे को आफ्टर 24 आवर्स जब 2 दिन कंप्लीट हो गए सर्जरी के, फ्राइडे शाम को मतलब मैंने ना वही वो मंगवाया था निक बेकर का, फेमस चेन है कॉफ़ी ब्रेकफास्ट चेन दिल्ली में, पनीर टिक्का बेगल मंगवाया था मैंने, सुबह मैंने खाया था। तो 24 आवर्स हो गए थे सर्जरी के, तो शाम को पता नहीं ना मुझे अनईजीनेस फीलिंग होने लग गई। तो मुझे क्या हो रहा है ये सब, तो पता नहीं बैंड बज रहा है, वही बज रहा है कि आई वाज फीलिंग लाइक वेरी अनईजी इनसाइड। तो फिर वही वो फीलिंग आने लग रही थी, भाई क्यों कराया ये वो सब, कि क्या ज़रूरत थी कराने की। तो फिर मेरे को इतनी वॉमिटिंग होने लग गई क्रेजी, मतलब 3-4 बारी मैंने वॉमिट किया होगा अक्रॉस 4-5 आवर्स। इतनी वॉमिटिंग वही होता है ना कि वो एनेस्थीसिया वेयर ऑफ हो रहा था, एंड बिकॉज योर बॉडी हैज़ गॉन थ्रू सो मच ट्रॉमा, वो खुदाई करते ये करते हैं प्लस हेवी मेडिकेशन, तो यू फील दैट। तो टचवुड इतनी उल्टियाँ करके फिर लिमका पी थोड़ी सी, तो थोड़ा रिलीफ मिला। फिर जाके ठीक फील हुआ रात को, तो बस फिर वो हुआ, एंड फिर बस फिर 2 दिन और वही सेम प्रोसेस। एंड संडे को हमारा फर्स्ट हेड वॉश था, तो फर्स्ट हेड वॉश में भी मुझे पता था कि क्या करना है, मतलब मैं रिसर्च कर चुका था कि वो क्या करेंगे। तो बेसिकली वो बोल में पानी डाल के माइल्ड शैम्पू उनका होता है, जो इसमें ज़्यादा वो नॉर्मल माइल्ड शैम्पू बेबी शैम्पू होता है वो करते हैं डालते हैं, एंड उसमें फोम बनाते हैं, फोम करके बस वो ऐसे लगाते हैं आपके सर के ऊपर, वीडियो में भी आपको दिखेगा, बस ऐसे लगाते हैं, टच करते हैं, एंड दे कीप इट फॉर 3-4 मिनट्स। वो नहीं करना, हाथों से नहीं करना कुछ, बस 3-4 मिनट लगाना है और लगा के रखना है, और फिर बस 3-4 मिनट के बाद बस पानी डाल दो, हेड वॉश, बस दैट्स इट। तो बस फिर वो जब हेड वॉश कर देते हैं, तो जब फर्स्ट वो था हेड वॉश, तो उन्हें वो पट्टी भी निकाली सारी, तो थोड़ा रिलीफ मिला, और ऑफ कोर्स वो निकाली, और फिर उसको घाव को पहुंचा, तो 4 दिन में भी हील काफ़ी करने लग जाता है। उनके बाद उन्होंने पहुंच के फिर पूरा हेड वॉश किया। हेड वॉश ख़त्म होने के बाद वही अश्विनी जी अजय जी करते थे मेरा, उन्होंने वो क्रीम लगाते हैं वहाँ पे कि वो जल्दी हील हो जाए। फिर आपको भी खुद क्रीम लगाना होता है, दे गिव यू अ क्रीम वंस, एक बार ही लगानी होती है शाम को, दिन में 2 घंटे पहले सोने से वो लगा रहे थे, एंड बस। और फिर मैं फिर घर वापस गया, तो अच्छा है, बेटर फील हो रहा था, थोड़ा ठंडा गर्म पानी नहीं लेते, ठंडा नॉर्मल लूक वार्म, कि ठंडा लगे, इतना रिलीफ फील हो रहा था। सो दैट इज़ द 4th डे। फिर 5th डे फिर वही मैं घर पहुंच गया, सब कुछ ये सब हो गया, एंड वही सेम प्रोसेस एवरीथिंग, सुबह एंटीबैक्टीरियल वो, लास्ट जो मेडिसिन एंड एवरीथिंग। तो मैं थक गया था, दिमाग ख़राब हो गया था बाय द 5th डे रात को, क्योंकि वो नेक पिलो पे इतना दर्द होता है बिकॉज ऑफ दैट, सारा प्रेशर पड़ रहा है आपके डोनर एरिया पे। तो मैंने फिर ना वही सोचा कि यहाँ पे किया हुआ है क्राउन, इधर किया हुआ है स्ट्रिप एंड पूरा क्राउन पे। तो मेरे को ना ऐसे करके सोना था बिकॉज मैं थक गया था नेक पिलो पे सो के। और बीच में अगर आप देखो मेरी फ़ोटो, 3-4 दिन के बाद मेरी थोड़ी स्वेलिंग आ गई थी आइज़ पे, जो फाइन, कुछ नहीं होता, खुद चली जाती है। वो रेकमेंड करते कि थोड़ा ऐसे ना ऐसे करके, ये ऐसे करके कि नीचे चले जाए स्वेलिंग, पता नहीं काम करता है नहीं, बट वो कर रहे। तो मैं इतना थक गया था 5th नाइट को, तो मैं बोला मारो गोली, भैंस की आँख, छोड़ो, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी मॉम भी साथ में सो रही थी, वो टेक केयर कर रही थी। तो वही वो बोलती कि इतनी मेहनत की है, कहीं अगर तुम टर्न कर जाओ, लग जाए। मैं टर्न करके सोना चाहता था साइड में, नेक पिलो हटाना चाहता था, तो मैं बोला नहीं, मुझसे नहीं हो सकता, मैं अगर सोऊंगा नहीं मतलब हालत ख़राब हो जाएगी, बिकॉज स्लीप इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स का हमेशा ट्राई करना चाहिए। 7-8 आवर्स स्लीप करो, हेल्थ बेनिफिट्स क्वाइट हाई है स्लीप के। लोगों को तो हार्ट अटैक भी हो जाता है बिकॉज दे डोंट टेक रेस्ट, दे डोंट टेक स्लीप व्हाटएवर। तो 5th नाइट को मैं ऐसे करके सो गया, और मतलब मेरा फिर वो टच नहीं हो रहा था, ये
ये एंड ये तो टचवुड फिर जो रिलीफ मिला 5th नाइट से, माय गॉड। क्योंकि ना आप मैं पहले भी ऐसे सो सकता था और थोड़ी स्वेलिंग और आ जाती, बट ठीक है उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट वो डर होता है ना कि पहली बार एक्सपीरियंस, इतना पता नहीं था। इवन तो मैंने रिसर्च की थी सब कुछ, बट यूट्यूब पे कोई इतना बताता नहीं है कि नेक पिलो पे तो इतना मुश्किल होता है। कोई लोग लाइक 6 महीने के बाद भी करते हैं। लाइक फॉरेन में आप देखोगे कभी कभी वो लोग सिर्फ सामने का करते हैं, फिर 6 महीने बाद पीछे का, बट वो हर हॉस्पिटल क्लिनिक का अलग प्रोसेस है। फिर जो 5th डे से जो आराम आया, और मैं घर के बाहर कहीं नहीं निकल रहा था, बाहर काम वाम मैंने छुट्टी ले ली थी, घर के अंदर रहो घर में ऑफकोर्स बाहर वॉक कर रहा था घर के अंदर जो भी, बट स्टेइंग अवे फ्रॉम सनलाइट एंड बस क्लिनिक जाते थे सुबह। तो संडे को वो हुआ एंड फिर 4-5 दिन वही सेम प्रोसेस चला थर्सडे तक, 7 days आफ्टर योर सर्जरी। फिर उन्होंने क्या किया, वही सेम प्रोसेस किया, बोल में पानी लिया, फोम बनाया, और फिर आप स्लोली फिंगर से क्लॉकवाइज वो रब करने लग गए थोड़ा थोड़ा, तो वो रेडनेस भी चली जाती है और ठीक हो जाता है। और एवरी हाफ एन आवर में स्प्रे मार रहा था घर पे पूरे 7 दिन एवरीथिंग। तो वो फिर रब करने लग जाते। तो जब वो रब कर रहे स्लोली तो उनके हाथ में लाइक वो स्कैब्स निकलते, विच इज़ गुड थोड़ा। तो ये 7 दिन चला फ्रॉम थर्सडे टू, मतलब 7 दिन के बाद स्टार्ट हुआ रब करना। तो थर्सडे को मेरा ऑपरेशन हुआ, संडे को फर्स्ट हेड वॉश, सिर्फ फोम टचिंग, और फिर संडे टू थर्सडे सेम चीज़ फोम टचिंग, और फिर नेक्स्ट थर्सडे से वो रबिंग स्टार्ट हो गई। फिर रबिंग स्टार्ट करते गए फिर नेक्स्ट संडे तक और लाइक 11-12 डे तक वो स्कैब्स रिमूव करने लग गए और फिर फाइनली स्कैब्स रिमूव हो गए। उसके बाद स्कैब्स जब सारे रिमूव हो गए, फिर सेलाइन स्प्रे मारने की ज़रूरत नहीं है, और मैं तभी भी मार रहा था। 14 डेज तक मैं घर पे रहा, मैं कहीं बाहर नहीं गया 14 डेज के, नो जिम, नो लॉन्ग वॉक्स और एनीथिंग। 14 डेज के बाद मैंने स्टार्ट किया वॉक करना पार्क्स में। जिम मैंने 1 मंथ के बाद स्टार्ट किया, बिकॉज इट्स बेटर सेफर। आई नो आपकी स्ट्रेंथ वेन्स कम हो जाते हैं, स्ट्रेंथ कम हो जाती है, बट वो मसल मेमोरी होती है, रिकवर हो जाएगा सब कुछ। तो 14 डेज का मैंने वॉक्स में करने स्टार्ट किया, वॉक करना ये सब। और मैं टावल ले जाता, मैं तभी भी स्प्रे मारता था, मारने की ज़रूरत नहीं थी, बट मैं तभी भी मारता था जस्ट टू कीप इट कूल एंड नाइस व्हाटएवर। और ज़्यादा पसीना ट्राई करता, ज़्यादा पसीना ना हो। तो अच्छा था प्रोसेस काफ़ी मज़ा आया। जब मैं हेयर ट्रांसप्लांट करके भी आया था क्लिनिक से, तो वो ना एक पट्टी बांधते हैं ब्लू कलर की, जस्ट टू कवर की कोई भी बैक्टीरिया, एयर पार्टिकल्स, स्पेशली दिल्ली में इतना पोल्यूशन होता है। तो मतलब सीधा मैं क्लिनिक से तो सीधा कार में बैठ गया था, घर जाके बस वो पीछे से ऐसे फाड़ना होता है एंड ऊपर से आराम से निकालो एंड साइड में रख दो एंड फेंक दो उसको। तो आज डे 52 है मेरे हेयर ट्रांसप्लांट का। अगर आप देखोगे जो ग्रोथ हुई है अभी, यहाँ पे थोड़े फॉलिकल्स आए हैं, यहाँ पे थोड़े फॉलिकल्स आए हैं, और यहाँ पे क्राउन पे थोड़े से आ रहे हैं अभी। तो यूजुअली क्या होता है, बाय मंथ 3 इट इज़ कॉल्ड एन अगली डकलिंग फेस। तो जो भी हेयर फॉलिकल्स लगाए, जो थोड़ा अभी ग्रोथ हो रहा है अभी भी, टच विच इज अ गुड साइन, वो थोड़े से आधे से ज़्यादा गिर जाएंगे वापस, मतलब फॉल ऑफ ऑल अगेन। थोड़े पैचेस स्टार्ट भी हो गए गिरना फॉलिकल्स के, बिकॉज वही होता है, वो साइकिल होती है, रेस्टिंग फेज, एनोजन फेज, तो पूरा साइकिल जाता है। तो मंथ 3 पे सारे मोस्ट फॉलिकल्स गिर जाएंगे वापस तो दैट इज कॉल्ड द अगली डकलिंग फेज। कोई डरने की बात नहीं है ऐसे। फिर मंथ 7 से आपके एक्चुअल ग्रोथ स्टार्ट होएगी। तो मंथ 7 से ग्रोथ स्टार्ट होगी और 12 to 15 मंथ्स लगते हैं फॉर फुल रिजल्ट टू कम। तो ऑलमोस्ट 1-1.5 साल लगा लो आप, 1.5 years ग्रोथ आने के लिए। एंड क्राउन में, जो क्राउन का एरिया होता है, सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, ऑलमोस्ट 15 to 18 months। और आपके जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल, डाइट वाइट्स पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है आपके सब कुछ, हेयर फॉलिकल्स पे एंड एवरीथिंग। एंड अगर आप देखोगे वही है कि यूजली वो रेकमेंड करते हैं कि अल्कोहल मत लो फर्स्ट मंथ में आफ्टर योर हेयर ट्रांसप्लांट, बिकॉज वही इट इफेक्ट्स राइट अल्कोहल एंड स्मोकिंग। तो या तो 7 months का ग्रोथ स्टार्ट हुई कि 15 months तक ऑलमोस्ट सब ग्रोथ दिखती है फिर। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है, पेशेंस। बट वही है, लोग कैप पहन लेते हैं, बैंडेना पहन लेते हैं आफ्टर द हेयर ट्रांसप्लांट। आप कुछ भी कर सकते हो। मैं तो लाइक फुल फ्री घूम रहा था, मज़े में, थोड़ा फ्रीडम भी होता है एंड लाइक इट्स गुड कूल एयर, ओपन एयर लगे, बस और क्या।
जब मेरी सर्जरी भी हो रही थी, they were playing Bollywood music within the OT room, to keep things light and calm, because वैसे इतना लोग टेंशन में होते हैं, नर्वसनेस होते हैं कि सर्जरी हो रही है, क्या होएगा. बट द टेक्नीशियंस ओवरऑल ग्रेट हेल्प, द डॉक्टर्स आर ग्रेट. बॉलीवुड म्यूजिक चल रहा था, फुल AC सब कुछ, एंड दे हैड पुट अराउंड 4500 ग्राफ्स ऑल ओवर माई हेड, फ्रंट, मिडल एंड क्राउन पे. और ये भी मैटर करता है कि वो कितने फॉलिकल्स निकाल रहे हो और कैसे निकाल रहे हो. कभी कभी क्या होता है, डोनर एरिया से कुछ ज़्यादा ही निकाल देते हैं, तो डोनर तो लाइक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, यू कैन चेक द रिसर्च, 30 to 40% ऑफ फॉलिकल्स निकालने चाहिए आउट ऑफ द एरिया. ना तो अगर आप ज़्यादा निकाल दोगे तो वहाँ पे भी जैसे वो दिखने लग जाते हैं एम्प्टी स्पेसेस. डोनर एरिया में तभी भी ठीक लगता है कि लोग जैसे यहाँ पे फीडिंग वीडिंग करते हैं इधर, तभी भी ठीक लगेगा, बट वो होना नहीं चाहिए, स्पेशली फॉर योर फर्स्ट हेयर ट्रांसप्लांट. सेकेंड थर्ड में शायद हो जाए, बिकॉज कितने निकाल सकते हो, बट फर्स्ट ट्रांसप्लांट में वापस आ जाना चाहिए. यहाँ के बाल क्योंकि कम फॉलिकल्स निकालते हैं, जितने चाहिए उतना ऑफ कोर्स, बट लाइक 30-40% ऑन एरिया से भी डिपेंड करता है कितना, कहाँ से एरिया, किधर का एरिया. और सामने काफ़ी सिंगल ग्राफ्स लगाते हैं. एंड योर ना मेन चीज़ है कि जो ये लाइन है ये स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए. कोई भी हेयर लाइन स्ट्रेट नहीं होती, इट हैज़ टू बी जिगजैग, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे. अगर आप देखोगे भी ये यहाँ पे ऐसे 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 और ऊपर जाता है, इस डाउन एंड अप ऐसे, तो वो डिपेंड ऑन आर्टिस्ट, बट शुड नेवर बी स्ट्रेट. ना तो बिल्कुल वो लगता है कि ये कुछ कराया है, बट अगर कराया भी हो वो तो मैं तो खुल के बोलता हूँ हाँ भाई मैंने कराया फुल ऑन, मैं शर्माता नहीं हूँ, फालतू की चीज़ है. बट हाँ, बट इट लुक्स मोर नेचुरल. दैट्स व्हाट वी यूजुअली ट्राई टू एम. There were suggestions made by the doctor to take finasteride and minoxidil post the transplant. Finasteride and minoxidil, I would suggest you also research yourself. There were a few points that are common, जिसमें finasteride, it can cause little side effects of like erectile dysfunction, ED, and minoxidil में वो भी था कि जब आप ये start करते हो तो you have to be on it for a lifetime. I'm not totally sure about this. You should do your own research on both finasteride and minoxidil. But I think minoxidil में ये भी होता है कि अगर आप जब start करते हो तो पहले बाल वो lose हो जाते हैं, and then you have to keep putting it, and then eventually it starts growing. It goes through the cycle. तो and plus then you are on it for forever, for your whole life. And जब आप बंद करोगे वो वापस गिर जाएंगे बाल. So I think it's like PRP also कि वो enhanced look देता है, and you have to be on it. I'm not sure, you should try to do your own research, but yes, this is what at least I saw online and most research papers कि आपको पूरी ज़िंदगी लाइफ लाइन पे रहना होगा. जैसे आप रोकोगे वो वापस बाल गिर जाएंगे. And also there was some potential results showing that there's a limit to it, how much you can use it up to a lifetime. After that शायद effective भी ना हो. So there are a few considerations to make. Please do your own research before deciding on those factors. This is what I read. I could be right or wrong. Yeah. एंड ऑल्सो ये भी एक रिस्क भी होता है कि आफ्टर वाइल राइट आपके क्या बोलते हैं कुछ पिंपल्स आ सकते हैं इधर उधर. कोई पिंपल छोटे छोटे होते हैं, रेड वाले जो कुछ करने की जरूरत नहीं है, वैसे खुद चले जाते हैं. बट कभी कभी कुछ बस हो जाए तो दे डू रेकमेंड यू क्रीम एंड अ टैबलेट. तो वो तब होता है अगर कुछ आ जाए, तभी वो मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी है दोज 5 days आफ्टर द सर्जरी. कि इतना वो खुदाई हुई है, सर्जरी हुआ है, ये हुआ है, ब्लड ये सब, तो यू हैव टू बी वेरी सेफ एंड कॉशियस. तो वो टैबलेट जो बोलते हैं वो लेना ज़रूरी है 5 days तक आफ्टर योर सर्जरी. एंड ऑल्सो केयर भी आप कैसे करते हो, इट मैटर्स अ लॉट. टचवुड अभी 52 सेकेंड है, कोई पिंपल ऐसे आया नहीं है. एंड वी यूज्ड टू लाइक हैव अ कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप फ्रॉम मेंडलिंग एस्थेटिक्स, जहाँ पे आपके फैमिली मेम्बर, आप एंड फ्यू डॉक्टर्स एंड अदर सेल्स रेप ऑल्सो इन दैट विच विल आंसर ऑल योर डाउट्स. तो आपको वो एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी डालते हैं जहाँ पे आप 1-2 साल तक कुछ भी क्वेश्चन है कुछ भी पूछ सकते हो. एंड यू कैन दिल आंसर ऑल योर क्यूरीज. जितना जल्दी हो सकते हैं वो आंसर करते हैं. एंड दे वर क्वाइट रिस्पॉन्सिव. एंड हेयर काफ़ी जल्दी ग्रो करना स्टार्ट हो गए थे टचवुड जहाँ पे ट्रांसप्लांटेड एरिया है. द ग्रोथ वॉज गोइंग टू क्वाइट वेल. अगर ये आप वीडियो देख सकते हो जिसमें फुल आपको दिखेगा सामने, लेफ्ट, राइट एंड बैकग्राउंड पे. ये डे 52 की वीडियो है हेयर फुल शेप की.
यूजली जब सर्जरी के बाद दे आर रेकमेंडिंग कि यहाँ बियर्ड का शेव मत करो, स्पेशली इन द फर्स्ट 72 आवर्स। वैसे मैंने एक हफ्ता नहीं किया था, इवन तो यहाँ पे कुछ किया नहीं था, कुछ होता नहीं, बट स्टिल इतना वो फ्रेजाइल होता है ना इधर। एंड ऑफ कोर्स हेयर ट्रांसप्लांट में आपका अगर डोनर एरिया कम है तो दे कैन ऑल्सो यूजली टेक इट फ्रॉम द बियर्ड और द चेस्ट एरिया, एंड वो वही उसी टाइम एनालाइज करते ड्यूरिंग द सर्जरी कि ज़रूरत पड़ेगी भी या नहीं टू टेक इट फ्रॉम द बियर्ड और द चेस्ट। बट टचवुड एवरीथिंग मेरे डोनर एरिया से लिया उन्हें एंड इट वेंट वेल। आई एम ऑलवेज क्यूरियस कि वो नंबर ऑफ ग्राफ्स कैलकुलेट कैसे करते हैं। लाइक आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ साइंस प्लस आर्टिस्ट्री। दे एनालाइज एंड दे प्रिडिक्ट कि इतने ग्राफ्स लगेंगे, बिकॉज आई फील इट माइट बी वेरी डिफिकल्ट टू काउंट कि कितने फॉलिकल्स चाहिए, कितने लगाने हैं, 4000, 4500, 3000, 3500 एक्सेट्रा। जब भी मतलब नेचुरली पहले जब मेरे बाल फुल थे, पहले उनको कोई थॉट नहीं होता था जब मैं किसी को भी देखता था विद लेस हेयर। अभी भी कोई नहीं था पॉजिटिव नहीं था नेगेटिव, बट अब आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट राइट, मैं जब भी जाता हूँ कहीं पे भी किसी के भी मुझे कम बाल दिखते हैं तो मैं उनका हमेशा डोनर एरिया दिख रहा होता हूँ कि भाई हाँ दिस पर्सन बी अ ग्रेट कैंडिडेट फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। कि जिनका भी थिक होता है डोनर एरिया साइड का पीछे का इधर, दे कैन पोटेंशियली गेट अ गुड हेयर ट्रांसप्लांट इफ नीडेड। सो माई एक्सपेक्टेशन आर वेरी बेसिक मिनिमम। मेरे कोई क्रेजी एक्सपेक्टेशन है कि वो इतने ह्यूज बाल थोड़ा सा भी कवर हो जाए, इट्स मोर देन इनफ। आई एम मोर देन हैप्पी। कंजर्वेटिव आउटकम क्योंकि आई नो व्हाट आई वाज गेटिंग इनटू, टचवुड। तो नॉर्मल बेसिक हो जाए, दैट्स इट। आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। थोड़ा भी कवर हो जाए, इट्स गुड। I would recommend melding aesthetics to everyone. I would say do your own research first. सब कुछ आपको जानना चाहिए खुद भी, and फिर जाना चाहिए। Melding aesthetics I would recommend definitely to all my friends and family. I would give a 9.5 out of 10 star rating to them. And special thanks to Dr. Gaurang Krishna, Robin. He was very helpful. बहुत अच्छा उन्होंने explain किया सब कुछ। मैंने काफ़ी सर भी खाया उनका questions के साथ। इसलिए डॉक्टर गौरांग कृष्णा कि वो satisfaction होना ज़रूरी है। कोई डॉक्टर्स होते हैं बस इतना जल्दी तो भाई ज़्यादा मत पूछो, कराना है कराओ ना तो जाओ, कि इतनी पब्लिक इतना डिमांड है। बट दे वर वेरी हेल्पफुल, दे वर वेरी काइंड, दे वर वेरी स्वीट। एंड द टेक्नीशियंस अजय, अश्वनी एंड द रेस्ट ऑफ देम, अनफॉर्चुनेटली सॉरी मेरे को याद नहीं आ रहा बाकी के नाम अभी, बट दे वर ऑल अमेजिंग एंड ब्रिलियंट। Loved everyone's work and it was a good experience. As Medlinks is growing, I hope that consistency and attention and growth to each patient that they are giving, it stays the same, and sky is the limit for Medlinks aesthetics then. और अगर आप सोच रहे हो, अगर आप डाउट में हो कराऊँ नहीं कराऊँ, डेफिनेटली गो फॉर इट। अब पता नहीं मुझे रिजल्ट कैसे आएगा फुल ऑन, बट जो भी आएगा ठीक है, एटलीस्ट थोड़ा तो कवर हो जाता है। मोर देन डेफिनेटली गो फॉर इट। थैंक यू गाइज, थैंक यू मेडलिंग एस्थेटिक्स। आप लोग के कोई भी अगर कोई क्वेश्चन है, इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस आप कमेंट्स में लिख सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर इफ एनी।